Hello students, today we will start with chapter 12 representing information in graphical form. In this chapter we will learn about pictograph, bar graph, circle graph and line graph. We will learn how to draw and interpret these graphs, okay? And also draw the graphs to represent simple data. Exercise 12.1. Question number 2. The marks obtained out of 10 by Sumit in different subjects is English 7, Hindi 8, Maths 10, Science 7, Social Studies 6 and Computers 5. Present the information first in tabular form and second in a pictograph. Okay, we have to represent these data in two different form, tabular form and pictograph. Okay, I'm doing question number 2. After that you can do the first question with yourself, because in first question you have to represent data only in tabular form. Okay, and in second, tabular and pictograph both. For tabular form you have to draw the table like this. Okay, subject, tally marks and marks obtained by Sumit. Okay, these are the subjects, English, Hindi, Maths. Okay, these are the tally marks, these are marks. Okay, how to draw the tally marks? English. In English Sumit got 7 marks, so for 7 we have to draw 1 2 3 4 lines, and for 5 we will draw like this. Okay, cross line. 4 तो आप सिंगल से ऐसे ड्रॉ करेंगे और 5th लाइन को ऐसे क्रॉस ड्रॉ करेंगे. सो ये पूरा ये कितना काउंट होगा? 5. एंड फॉर 7 1 2 मोर लाइन्स. ओके, सो दिस इज 8. 5 plus 3 8 and this is 10. 5 plus 5 10. Okay, 7 6 and 5. To draw pictograph we have to write the subjects and we have to use a symbol to represent marks. Okay, here one picture represent 1 mark. Okay, यहाँ पर एक ये पिक्चर स्माइली 1 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है. इन इंग्लिश ही गॉट 7 मार्क्स, सो आई ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स. ओके, इन हिंदी 8. ओके, in maths he got 10 marks, so you have to draw 10 pictures of. Okay, you can use any symbol other than this. आप कोई भी symbol use कर सकते हैं, बस वो एक पिक्चर की फॉर्म में होना चाहिए. Okay, now you have to complete this table, maths, science, social science and computers. Okay, with yourself. After that you can do the first question like second one, tabular form. In third, we have to draw the bar graph. Draw a bar graph to represent the number of children who play different games in Jyoti school. Okay, we have learned two forms, tabular form and pictograph. Third is bar graph. Okay, this is the data. Okay, these are the number of students who played hockey, means 5 plus 5 plus 5. 15 students play hockey, 40 students play football, and 45 plays cricket and 20 plays 20 plays volleyball. In bar graph you have to draw 2 lines. Okay, this is x and this is y. First x and y. Okay, 2 line draw करनी है. This is o, so line ox and oy. Now we have to mark the number of children in vertical lines, mean y, and name of sports in horizontal line. वर्टिकल लाइन में मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु प्ले डिफरेंट गेम्स वो रिप्रेजेंट किया है. ओके, और सेकंड में हॉरिजॉन्टल लाइन में नेम ऑफ स्पोर्ट्स. नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड और प्लेड हॉकी आर 15. सो 5 10 15. आप मैंने यहाँ पे हॉकी के लिए कितना रिप्रेजेंट किया है? 15. आपको क्या करना है, जो भी कॉलम आपको बनाएंगे, ठीक है, वो सेम मेजरमेंट्स के साथ बनाना है. जितना गैप आप फर्स्ट कॉलम में लेंगे उतना ही सेकंड में. ओके, मैंने 1 सेंटीमीटर के गैप से सारे कॉलम स्क्वायर्स बनाए. ओके, 1 सेंटीमीटर का आप गैप ले सकते हैं. ठीक है, आप 1 नहीं कितना भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिक्स होगा. अगर 1 लिया है तो 1 ही रहेगा,
2 सेंटीमीटर लिया है तो हर किसी के लिए 2 सेंटीमीटर लेना है। ओके, मैंने इधर भी 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है। तो फर्स्ट 1 सेंटीमीटर का जो ये गैप है आपको इसे स्किप करना है, फर्स्ट बॉक्स को, बार को, देन सेकंड बार में आना है। ओके, सेकंड बार में आपने फर्स्ट स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया हॉकी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड हॉकी 15। सो वी विल ड्रॉ लाइक दिस। ओके, वी कैन शेड दिस बार, आप इसे शेड भी कर सकते हैं विद डिफरेंट कलर और यू कैन ड्रॉ द लाइन्स लाइक दिस। For second, first we have to skip a bar, then we will draw second bar for football. Now football, number of children plays football are 40, so we will draw the lines or shade the lines up to 40. 40 का मार्क यहाँ पर है तो हम 40 तक उसे शेड करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सेम वे क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। I have drawn an extra column here. Okay, you have to draw up to only 20 because 20 students play volleyball. मैंने एक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया था, ठीक है, आपको यहीं तक ही ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज द हेडिंग ऑफ बार ग्राफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले डिफरेंट गेम्स। याद रखिएगा एक वर्टिकल लाइन OY एंड एक हॉरिजॉन्टल OX, और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो डिफरेंट गेम्स प्ले कर रहे हैं, और हर किसी में एक सेम गैप रखना है आपको। ओके, 1 सेंटीमीटर 1 1 1, सेम इन हॉरिजॉन्टल लाइन 1 सेंटीमीटर 1 1। उसके बाद फिर एक 1 सेंटीमीटर के बाद एक बार बनाना है, ठीक है। तो आप पहले आप रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर 0 है, 1 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगा लीजिए, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर उस पर ही आप बार बना सकते हैं, और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बना सकते हैं। ओके, in question number 4, the data is given and you have to draw the tabular form and form of bar graph using scale of 1 centimeter representing 50 books. Okay, यहां पर हमने इस ग्राफ में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 चिल्ड्रंस। यहां पे 1 सेंटीमीटर सिर्फ 5 चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर आपको कितना करना है? 50 मीन्स 0 से 50, देन 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, इस तरीके से आपको, ठीक है, नंबर्स लिखने हैं, नंबर ऑफ बुक्स। ओके, क्योंकि यहां पर उसने मेंशन किया है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 50 बुक्स, तो वहां पे स्केल कितना रखेंगे आप? 50 50। इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ, विच स्केल इज बेटर? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 5 मार्क्स और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 10 मार्क्स। अब यहां पे मार्क्स हैं 95, 90, 35, 55, 80, 85. All are the multiples of 5, not 10. Only 90 is the multiple of 10, but all 5 numbers are multiple of 5. So we will choose the scale of 5 marks, क्योंकि उसमें आपको आसानी होगी। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 5 मार्क्स, तो आपको 5 5 का लेना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिया था। ओके, Question number 6, 80 children of class 5th A were asked about the snack they liked the most. The result was as follows: samosa 40, dhokla 20, pizza 10, vada 10. These are the snacks who likes by children of class 5th A. Represent the data in circle graph. Now we have to draw the circle graph to represent this data. But before to draw the graph, we have to find the fraction of the total of every snack. To find the fraction of the total, we have to find like this. 40 students are like 40 out of 80 children like samosa. So 40 upon 80. Okay, 40 children like कर रहे हैं out of 80. So 40 upon 80 is equals to 1/2. Simplify करेंगे तो 1/2 मिलेगा। Okay, this is the fraction for samosa, and for dhokla 20 out of 80, 1/4, for pizza 1/8, and for vada also 1/8. Now how to draw the graph? Circle graph. First you have to draw the circle like this. Okay, I am taking then example. Okay, मैंने इस सर्कल को, आपको पहले ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, मैंने बुक से एक एग्जाम्पल लिया है। नाउ टू ड्रॉ these data in this circle,
Now first we have to divide this circle in 8 parts, 8 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, हमने इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस इज द सेंटर. ओके, एंड नाउ द फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/2 विच इज फॉर समोसा. समोसा के लिए फ्रैक्शन था 1/2. 1/2 मीन्स 1 आउट ऑफ 2. अगर हम सर्कल के 2 पार्ट करें उसमें से एक पार्ट, अब सपोज अगर आपने सिर्फ 2 पार्ट किए हैं तो ये लाइन है फॉर डिवाइडिंग 2 इक्वल पार्ट्स. तो एक पार्ट ये हो गया और सेकंड अदर दिस. तो ये पूरा पार्ट, दिस वन, ये पूरा पार्ट किसके लिए है? समोसा. ये पूरा पार्ट हो गया समोसा के लिए. ओके, ढोकला के लिए पोर्शन था 1/4. अब 1/4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ वी डिवाइड दिस सर्कल इन 4 इक्वल पार्ट्स, अगर आप 4 में डिवाइड करते तो 1 2 2 लाइन ड्रॉ होती. मीन्स दिस इज द 1 पार्ट, दिस इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. 4 इक्वल पार्ट हो जाते. तो अब 4 में से अगर आपको सिर्फ एक सेलेक्ट करना है तो कौन सा? ये वाला तो हम पहले समोसा के लिए सेलेक्ट कर चुके हैं. अब बचे हैं ये और ये. इन दोनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं. सपोज मैंने ये वाला सेलेक्ट किया. ठीक है, किसके लिए? ढोकला. तो ढोकले के लिए ये वाला पोर्शन हो गया और ये फर्स्ट हाफ जो था वो किसके लिए था? समोसा के लिए. अब पिज्जा और वड़ा के लिए दोनों का फ्रैक्शन सेम है 1/8. अब देखिए अगर हमने इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एक पोर्शन 1/8 होगा. तो ये पोर्शन किसके लिए हो जाएगा? पिज्जा. और ये वड़ा. अगर हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा. देखिए 1/2. हाफ तो पोर्शन मैंने ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं वो समोसा के लिए थी. तो हाफ सर्कल तो समोसा को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये 1/4, ठीक है, 1/4 ढोकला का था. तो अगर हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था तो ये वाला पोर्शन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ढोकला. दिस पोर्शन फॉर पिज्जा एंड दिस फॉर वड़ा. यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ लाइन्स और डिफरेंट लाइन्स और कलर्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्नैक्स. आप कलर भी यूज कर सकते हैं. सपोज यहां पर आपने डिफरेंट कलर यूज किया, यहां पर अलग, यहां पर अलग और यहां पर अलग. और यू कैन शेड डिफरेंटली. आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 द डेटा इज गिवन. A survey of 200 students of class 5 were carried out in a school to find the kind of storybooks they liked the most. Using the given data, draw the graph, circle graph by marking the correct option in the given circle. आपको ग्राफ पहले से गिवन है, बस आपको बताना है कौन सा पोर्शन किस स्टोरी बुक का है ना. तो यहां पर 80 स्टूडेंट्स हैं जो स्टोरी एडवेंचर स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं आउट ऑफ 200. So first we have to find the fraction 80/200. Okay, same way in fantasy 60/200, detective 20/200, science fiction 40/200. सबका फ्रैक्शन आ जाएगा. फिर आप उस फ्रैक्शन को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, दिस इज फॉर यू. अब आपको इसे कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 8, सर्वे ऑफ 144 पीपल वर कैरीड आउट टू फाइंड आउट विच स्नैक दे लाइक्ड द मोस्ट. The result is showing in the form of a circle graph. Answer the following questions. Okay, आपको पहले एक सर्कल ग्राफ गिवन है और आपको इससे रिप्रेजेंट करना है, सॉरी, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. हाउ मैनी पीपल लाइक ईच स्नैक. सॉरी, यू हैव टू स्किप द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट फेवरेट snack. The most favorite snack is samosa because the most portion is covered by this. Which is the least favorite? Least favorite is ढोकला because यहाँ पे सबसे कम पोर्शन ढोकला ने कवर किया है तो वो सबसे लीस्ट फेवरेट है. ओके, फर्स्ट पार्ट आपको इसलिए नहीं कराया है क्योंकि इसमें अभी आपको फ्रैक्शन फाइंड करना नहीं पता है कि ये कितना फ्रैक्शन है. दैट इज वाई वी स्किप फर्स्ट क्वेश्चन. Now exercise 12.2, line graph. Now we have to represent the data in line graph. Kazim is a very fond of plants. He sowed a bean seed and then measured the height of the bean plant every week in a table. Show the growth of the plant on a line graph
Give a suitable title to the graph and answer the following questions. Okay, we have to give in the title of this line graph, and we have to answer this question and also complete the graph. The title for the graph will be the growth of plant. Okay, growth of plant. This will be the title for the graph. Now this is the data, means first week 0. अभी तो फर्स्ट वीक में उसकी कुछ भी हाइट नहीं है, ठीक है, अभी उसने. And in first week the height of plant is 3.5 centimeter. In second week 5 centimeter. Same way in sixth week this is 10 centimeter. Now this is the graph. These are the weeks, means time, and this is the height. देखो, vertical lines represent height of plant and horizontal line represent time, means week. अब फर्स्ट वीक में कितनी हाइट थी? 3.5 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट वीक में 3.5 था. देखिए फर्स्ट वीक है, अब आपको इसी लाइन पर पॉइंट मार्क करना है, फर्स्ट लाइन पर जहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है. तो फर्स्ट पर 3.5 कहाँ आएगा? देखिए ये 3 है, ये 4. 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5. ओके. सेकेंड वीक 5 सेंटीमीटर, तो सेकेंड लाइन में ड्रॉ करना है अप टू 5 पर मार्क किया यहां पर, ठीक है. इसी तरीके से थर्ड वीक में है 6.5, तो थर्ड लाइन ये है. ओके, और 6.5 आ जाएगा आपका यहां पर. ओके, दिस इज द 6.5. For fourth week 8 centimeter, fifth 9 centimeter and sixth is 10 centimeter. तो हमने ये पहले डॉट्स ड्रॉ किए है ना, पॉइंट किए हैं कहां कहां पर करना है. Then we have to draw the lines by joining these points. Okay, starting from 0 up to last week 6. These are the lines. Okay, by joining the points which we mark. अब जो पॉइंट्स मार्क किए थे उनसे एक लाइन ड्रॉ होगी और ये लाइन आपको स्केल को यूज करके ड्रॉ करनी है. ओके, सो दिस इज द लाइन ग्राफ विच वी हैव टू ड्रॉ. नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मच डिड द प्लांट्स हाइट इंक्रीज इन द फर्स्ट वीक? फर्स्ट वीक में कितनी हाइट इंक्रीज हुई है? 3.5 सेंटीमीटर. हाउ मच डिड द हाइट इंक्रीज इन द सेकेंड वीक? अब सेकेंड वीक में कितनी इंक्रीज हुई है? 3.5 से 5 सेंटीमीटर गई है. ओके, आपको ये नहीं बताना कि 2 वीक्स तक कितनी है, सेकेंड वीक में इंक्रीज कितनी हुई है. मींस फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक कितनी इंक्रीज हुई है, मींस 3.5 टू 5 1.5 सेंटीमीटर. अगर 3.5 से 5 तक देखें कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर. नाउ थर्ड, इन विच 2 वीक्स was the increase in height is 1 centimeter. अब किस 2 वीक्स में हाइट 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है? इन फिफ्थ वीक द हाइट इंक्रीज इन 1 सेंटीमीटर बिकॉज 8 to 9, and also in 6th week the height increase in 1 centimeter. So answer is 5th week and 6th week. Guess the height of the plant after 7 week. अब 7 वीक के बाद हाइट कितनी होगी इस प्लांट की? अब इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है क्योंकि ग्रोथ फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा भी हो रही है, पहले एकदम ज्यादा हुई है, कम हुई है, फिर ज्यादा हुई है. तो आप वो अपनी तरफ से कितना भी गैस कर सकते हैं. ओके, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, और 1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है, 0.5 सेंटीमीटर. ओके, यू हैव टू गेस द आंसर. ओके, now second question you have to draw with yourself, okay, the line graph and answer these questions. Now this chapter is completed. You have to do all questions of this chapter. Okay, the first exercise to be done in notebook, and in second exercise you have to draw the graph in book and answer of these questions should be written in notebook. बस आपको ग्राफ इसमें रखना है, बुक में ड्रॉ करना है, और यहां पर ये जो आपके क्वेश्चंस आंसर थे इन्हें कहां पर लिखना है आंसर? नोटबुक में. ओके, थैंक यू.